لاہور سے ہمارے کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق گلشن راوی پولیس کی بہترین کارروائی، گن پوائنٹ پر وارداتیں اور جھپٹا سنیچر گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او گلشن راوی نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان بنیامین اور حیدر علی کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او گلشن راوی عدیل انجم کے مطابق ملزمان کو سی سی ٹی وی ویڈیو میں خواتین سے جھپٹا مار کر پرس چھیننے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی ویڈیو، سیف سٹی کے کیمرے جات اور جدید ٹیکنالوجی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان بنیامین حیدر علی سے موبائل فونز، جیولری، لیپ ٹاپ، لیڈیز پرس، ہزاروں روپے نقدی، پستول، 30 بور بما گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کا کہنا ہے کہ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے اسلام پورہ سے چوری شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان 50 سے زائد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ نکلے، متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ایس پی بلال احمد نے مزید کہا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کے ایس ایچ او گلشن راوی عدیل انجم اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا اولی ترجیحات میں شامل ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس نوجوانوں سے میس کے تزئین و آرائش، کھانے کے معیار کی بہتری کا وعدہ وفا کر دیا۔ پولیس لائن میں محمد کیسر شہید میس ہال اپ گریڈ کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنل فیصل کامران نے افتتاح کیا اور جوانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کرائم رپورٹر راشد بٹی سے۔ جی راشد، بتائیے گا۔ جی بالکل، بہت عرصے سے پولیس لائن میں میس کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز پولیس لائن میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کیسر شریف شہید میس ہال کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسی موقع پر ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد زنیر چیمہ دیگر افسران جوانوں کی اکثری تعداد پر موجود تھے، جنہوں نے میس ہال کی خوبصورتی اور کھانے کا اعلیٰ معیار کو سراپا۔ اسی موقع پر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کہا، سخت ڈیوٹی کرنے والے جوانوں کو پرسکون ماحول فراہم کرنا اولی ترجیح ہے۔ اسی سلسلے میں میس ہال کی خوبصورتی، کھانے کے معیار کو مزید بہتر بنا دیا گیا۔ شہریوں کے جان مال کو تحفظ دینے والے جوانوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے پولیس لائن میں موجود ڈی کیئر سینٹر کا بھی وزٹ کیا۔ جی لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر نمائش کا افتتاح کر دیا۔ نمائش کا اختتام پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے کیا تھا، جبکہ نمائش میں چین، ارجنٹینا، انڈونیشیا اور ترکی کی کمپنیوں اور وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ نمائش میں فارما پروسیسنگ، پیکیجنگ، مشینری، لیبارٹری ٹیسٹنگ سامان، را مٹیریل، ڈائگنوسٹک سامان، سرجیکل آلات، مصنوعات اور ٹیکنالوجی کو فوکس کیا گیا ہے۔ ملک کی فارما انڈسٹری کے فروغ سے ملکی معیشت میں استحکام آئے گا۔ ہمیں بھی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی کی سوچ اپناتے ہوئے غیر ملکی مصنوعات کی بجائے ملکی مصنوعات خریدنے کا کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ملکی انڈسٹری کے فروغ کے لیے وفاقی صوبائی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ فارما انڈسٹری کے استحکام کے لیے پنجاب حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ اس موقع پر انہوں نے نمائش پر مدعو کرنے پر پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر محمد علی، چیئرمین پی پی ایم اے سعد جاوید اکرم، صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابو ذر، سینئر وائس چیئرمین پی پی ایم اے ڈی جی ڈرگ کنٹرول محمد سہیل، سیکرٹری پی کیو سی بی ڈاکٹر منور حیات سمیت کمپنیوں کے نمائندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عارف والا میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کے ویژن اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے تحصیل انتظامیہ متحرک اسسٹنٹ کمشنر عارف والا کی سربراہی میں بازاروں میں باری مشینری کے ذریعے آپریشن جاری۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل کی اس رپورٹ میں۔ جی عارف والا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریہ طارق کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل کی نگرانی میں آپریشن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل نے میڈیا نمائندگان کو بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکومت پنجاب کا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو گیا پورے پنجاب میں۔ اسی سلسلے میں یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ سردست کشادہ بازار ہوں تاکہ جو کسٹمرز آئیں اور اسپیشلی فیمیل جو ہیں خواتین، وہ ایک احساس تحفظ کے ساتھ آسانی کے ساتھ شاپنگ کر سکیں، اور اس میں آپ لوگوں کا یہاں کے مارکیٹس کا کاروبار بھی ڈیفینیٹلی فلرش کرے گا۔ تو اس میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، نہ کوئی ایریل انکروچمنٹ ہونی چاہیے اور نہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر انکروچمنٹ ہونی چاہیے۔ باقی تفصیلات جو ہے میرے سی ایس صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ چیف آفیسر افضل زاہد نے تجاوز کے خلاف آپریشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، جی یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پہ یہ پورے پنجاب میں لانچ ہوئی ہے، اور یہ عارف والا میں بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ جناب کمشنر ساہیوال ڈویژن ساہیوال اور میڈم ڈی سی جو پاک پتن ہے ماریہ طارق صاحبہ، ان کی ڈائریکشن پہ
मेरे असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया का अमला और पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी लाइट डिपार्टमेंट हैं, वापडा और ट्रैफिक पुलिस, सारे मिलके ये ऑपरेशन को लॉन्च किया हुआ है। इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर हम नाजायज़ तजावुज़ात तमाम तमीर शुदा, पुख्ता और गैर पुख्ता जितनी भी हैं उनको हम रिमूव करेंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ताजरों के साथ भी मीटिंग्स की हैं, पब्लिक को अनाउंसमेंट भी बहुत ज़्यादा करवाई है। और इंशाल्लाह हम जैसा कि एसी साहब ने आपके बताया कि हम बाज़ारों को खुला करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। इस हवाले से बाजार के एक ताजर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अदील यासीन हूँ, अंजुमन ताजरा का एक मेंबर हूँ और मैं एक दुकानदार हूँ। मैं समझता हूँ ये बाज़ार जो खुले हो रहे हैं, ये क्रोचमेंट का जो काम हो रहा है, ये बहुत देर पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन देर है दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजर अपनी दुकानों के आगे स्टॉल रेंट पे नहीं देते वो तो स्पीच पे हैं बहुत खुश, लेकिन जिन्होंने पत्ता माफिया बनाया हुआ, एक माफिया बने स्टॉल को रेंट पे देते हैं, वो इस चीज़ पे खुश नहीं है। लेकिन हम हुकूमत से अपील करेंगे और ये काम कर रहे हैं तो उसको मुस्तकिल मजाजी से करें। ये ना हो ये पुलिस हफ्ते के लिए और हफ्ते बाद जो हमारे नेशनल असम्बली और उसके पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं वो जाएँ और पॉलिसी चेंज हो जाए। ये पॉलिसी चलनी चाहिए और साफ़ सुथराई जो है उसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रोचमेंट में साफ़ सुथराई का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। बाज़ारों में गंदगी के ढेर हैं, बुरे हालात हैं, इनकी भी मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए, पॉलिसी को अच्छे तरीके से करनी चाहिए अप्लाई। आरेवाला इंतजामिया की जानिब से क्रेन मंगवा ली गई जिससे पुख्ता थड़े व दीगर तजावज़ को हटाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोहल, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ आरिफ वाला। सियालकोट से कामरान सुरहरी से हल्का की जितनी खिदमत मैंने की है दूसरा कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मौजा सगर में मलिक जमील अवान की बाबी के वसाल पर फातहवानी की। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मेरा इलाका है, हल्का की अवाम से भाईचारे का रिश्ता है, मैं हर वक्त अवाम के लिए खिदमत के लिए तैयार रहती हूँ। हल्के का जो दुख दर्द मुझे है किसी दूसरे को नहीं हो सकता और अपने हल्के की जितनी खिदमत मैंने की है कोई दूसरा तरक्याती कामों का मुकाबला नहीं कर सकता। आइंदा भी अगर मौका मिले तो आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगे। इस मौका पर मलक शफकत अवान एडवोकेट, मलक सदीक नंबरदार, मलक आबद भी मौजूद थे। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल हक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाह चिमनी और गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चाह चिमनी का अचानक मुआयना किया। उन्होंने स्कूलों में तदरीसी मियार और इंतजामी अमूर की अंजामदेही में मुतल्लिका सरबराहान की कारकर्दगी का जायजा लिया, इनसे इंतजामी ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों के बच्चों की इनरोलमेंट का जायजा लिया और इस पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सरबराहान को ताकीद की कि स्कूलों में सेहत सफाई के उम्दा माहौल के साथ साथ बच्चों के लिए खेलों की सहूलियात की फराहमी और खूबसूरत शजरकारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। खबर शामिल करते हैं चौबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। चौबारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुतरा पंजाब प्रोग्राम और तजावीज़ात के खात्मे के मुहिम पर अमल दरामद जारी। जिला की तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर के सफाई सुथराई और तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सनाउल्लाह हंजरा और MRO मोहम्मद अरसलान की ज़ेर क़ियादत चौबारा सिटी में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मशीनरी के जरिए पक्के थड़ों को मसमार करके मलबा फौरी तौर पर ट्रालियों की मदद से डंपिंग पॉइंट पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की सुतरा पंजाब और तजावीज़ात से पाक पंजाब मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इस सिलसिला में अंजुमन ताजरान को भी एतमाद में लिया गया है जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर तजावीज़ात ख़त्म की हैं। तहसील इंतजामिया ने पक्के थड़ों और साइन बोर्ड को मशीनरी के जरिए हटा दिया है। तहसील चौबारा जिला का दाखिली दरवाज़ा है और इसको अवाम के तावन से खूबसूरत और दिलकश बनाएंगे। पंजाब भर में चौबारा को इस प्रोग्राम के तहत मिसाली तहसील का दर्जा दिलवाने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस टाउनशिप और चोंग ने घरों से ज्वेलरी, US और कनेडियन डॉलर समेत पाकिस्तानी करेंसी चोरी करने वाला बड़ा गैंग कराची से गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक कराची से है जो कराची से लाहौर पहुंचने के बाद जुमा, हफ्ता और एतवार को वारदातें करते थे। पेशावर गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद शहबाज और इसका साथी तैयब जो हकीकी बाई जाने चाहते हैं शामिल हैं। मुलजमान से 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया जिनमें ज्वेलरी, फॉरेन करेंसी और कैश शामिल है, जबकि मुलजमान से चोरी होने वाला तमाम सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान 130 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता जबकि 4 मुकदमात में इश्तहारी हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों, ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने अपने ऑफिस किला गुजर सिंह लाहौर में बरामद होने वाला सामान असल मालकान के सुपुर्द किया। इस मौका पर मुद्दईयान ने अपने सामान की वापसी पर SSP इन्वेस्टिगेशन और पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया, जबकि SSP मोहम्मद नवीद का मजीद कहना था कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की गवर्नमेंट चौधरी मोहम्मद शफी स्पेशल एजुकेशन सेंटर नारोवाल आमद स्पेशल एजुकेशन सेंटर नारोवाल में महकमा सेहत की जानिब से मजूर बच्चों में आँख नाक और कान समेत मुख्तलिफ अमराज के बुनियादी टेस्ट किया। नारोवाल में महकमा सेहत की जानिब से मजूर बच्चों में आँख नाक और कान समेत मुख्तलिफ अमराज की बुनियादी टेस्ट किए जाने वाले स्क्रीनिंग कैंप का मुआयना किया गया। इस मौका पर कैंप पर मौजूद डॉक्टरों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा को स्क्रीनिंग कैंप पर परफॉर्म किए जाने वाले बुनियादी टेस्ट और कैंप के ऑपरेशनल वर्क बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। जिन बच्चों में मज़कूरा बुनियादी अमराज की तशखीस को ऐसे तमाम बच्चों का मुकम्मल इलाज और मुआवजा भी किया जा रहा है। इस मौका पर बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना था कि स्पेशल बच्चे हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं। इनकी सेहत और तालीम के लिए हमारी तमाम रिसोर्सेज हमा वक्त मौजूद हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खदरू थाना की हदूद से 13 जमड़ाऊ। तफसीलात के मुताबिक खदरू थाने की हद में सरसों की फसल से नामालूम औरत की सड़की लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त उम्र 50 साला अजीमा बगटी 15 जमड़ाऊ के तौर पर हुई है। लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर मजीद इंक्वायरी शुरू कर दी है। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम तहसील हासिलपुर में सफाई सर्विसेज के आगाज़ के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस हासिलपुर में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान हसूसी साबिक मेंबर पंजाब असम्बली मोहम्मद अफजल गुल थे, जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ अली अब्बास पीरजादा ने बतौर मेहमान एजाज तकरीब में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने खसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद खान, CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर बल्दियात बहावलपुर खुर्शीद अहमद, कंपनी अफसरान, मुस्लिम लीग नून हासिलपुर के साबिका बल्दियाती नुमाइंदगान, सैनिटरी स्टाफ और दीगर अहम सियासी समाजी शख्सियात ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मोहम्मद अफजल गुल ने कहा कि हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मकसद पंजाब के शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए सफाई के खिदमात की आउटसोर्सिंग एक नहायत मुस्बत इकदाम है, जिससे न सिर्फ सफाई के मियार में इजाफा होगा बल्कि देही शहरी रहायशियों को सफाई के हवाले से मुनज़्ज़म और तेज तर खिदमात फराहम की जाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ अली अब्बास पीरजादा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहरी देही इलाकों में माहौलियाती लूदगी, कूड़े के ढेरों और बढ़ते हुए सेहत के मसाइल के लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जिद्दत नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम पंजाब के साथ साथ हासिलपुर के माहौलियाती निज़ाम में बेहतरी का पेशखीमा साबित होगा। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम 4 माह से ज़ायद हैं, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। तनख्वाह मांगने पर धमकियां मिलती हैं, तनख्वाहें दी जाएं। सैनिटरी वर्कर्स हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद के 85 सैनिटरी वर्कर्स खवातीन मर्द जो निजी कंपनी के तहत काम सफाई सुथराई करते हैं, अस्पताल को साफ रखते हैं, पिछले 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। सैनिटरी वर्कर जिनमें 45 औरतें और 40 मर्द शामिल हैं, जो 85 खानदान बनते हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। सैनिटरी वर्कर्स का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें हमारी तनख्वाह दी जाए। जबकि इस हवाले से MS, DHQ और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद भी नोटिस नहीं ले रहे। मुसलसल तनख्वाहें न मिलने पर घरों में फाके शुरू हो गए हैं। सफाई वाली निजी सोमो कंपनी के सुपरवाइजर से रब्ता करने की कोशिश की गई तो रब्ता ना हो सका, जिससे कंपनी का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हाफिजाबाद में सैनिटरी वर्कर्स और सिक्योरिटी गार्ड जो रोजाना उजरत पर भर्ती किए जाते हैं, लेकिन इनको माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं। इन तमाम अफराद के सोशल सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाए जाते, जिससे ये सरकारी सहूलियात जो हुकूमत पंजाब एक मजदूर को फराहम करती होती हैं से महरूम रखा जाता है, जो इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है, जिन पर मुतल्लिका महकमा को नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद, वजीर सेहत, वजीर लेबर, इनफरादी कुव्वत, वजीर आला पंजाब मरगन नवाज इन मामलात का नोटिस लेते हुए इनकी तनख्वाहों के साथ इनके तमाम मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी गार्ड बनाने के अहकाम सादर फरमाएं ताकि इनके जायज़ हकूक मिल सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।